Hello everyone. I hope you all are listening. Like you can listen my audio. Um, हिमांशु ने और मनोज सर ने काफी बता दिया है ऑलरेडी. तो दो चीज मैं फोकस करूंगी. um, एक चीज तो कि इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं, व्हाई दे आर टेकिंग सो सक्सेसफुल इंटरव्यू. और रीजन बीइंग कि दिस सर्विस इज मच मोर चैलेंजिंग देन योर प्रिपरेशन. So they want that right kind of people and service. So all those qualities, mental alertness, integrity, critical thinking, all these are required in civil services. So that's why they are taking your interview. And see, personality test, I find it's most interesting phase of preparation. Reason being, you have to show what you are. So you don't need, preparation is only add your in your confidence. So three things you need. Second thing which I want to tell you, three things you need. First, confidence. Second, humbleness, and third, honesty in the interview. Hello friends. हाय प्रदीप एजेंट Hi, है. Pradeep. प्रदीप. हाँ, अभी नेहा बता रही है देख. हाँ नेहा कंटिन्यू. Then three things you need: humbleness, honesty, and confidence. So confidence you will gain by your preparation level, your knowledge. Humbleness, you have to be humble, because if you are entering into civil services, humbleness is one thing that is needed to serve the society, and like you are given a big post, so humbleness is all required so that people can approach you. And honesty, I think honesty is necessary in interviews. Like you can't bluff the interview board. So all these three things you need to keep in mind. Other things are already told by Manoj sir and Himanshu. And if you have any query, you can drop here. Thank you. All the best. नाउ आई लाइक टू. मैं प्रदीप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रदीप अपना एक्सपीरियंस बताएं इंटरव्यू का. आई थिंक प्रदीप. हाँ प्रदीप. जाना पड़ेगा. हाँ बताइए. मेरे को जाना पड़ेगा. कोई नहीं इट्स ओके. ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स. देखो इंटरव्यू का कोई एक सीक्रेट नहीं होता. यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड इंटरव्यू प्रोवाइड्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कन्वे योर थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस in whatever way you like. They just test your personality on the parameters that they have already mentioned in the syllabus. So do best and just present yourself. All the best to everyone. Himanshu. Yeah, okay bro. And friends, I'll connect with you all once again when I'll get time. Himanshu, अगली बार connect करते हैं अच्छे से. हाँ हाँ श्योर bro. हाय मृगनाथम. Hi, good evening, Pradeep, good evening, bro. हाय हिरेन. Good evening, bro. हाय. Good evening. हाँ, Okay, so you now- can continue with Pradeep. हाँ नहीं Pradeep has gone actually. He has to go somewhere. So Okay, yes, fine. Mृganatham, you It's fine. can start your you can. Yeah, okay, fine. Good evening to all of you. Thank you for arranging this, Himanshu, because as of now, today, aspirants, lot of aspirants are there around right now. Around 1,894 aspirants have joined with us, and I don't think so. All of them will be going for interview, but anyhow, they will also be appearing for the interview in the future. I wish so. We all are wishing for that, and I do have 4 things to share with you. Um, so I will be sharing 4 things with you. This is based on my experience, and yes, you have been sharing, and Neha ma'am was sharing, and Bindu sir, our Manoj sir was sharing. Lot of various experience have been happened during our interview, and this is all from my interview point of view. So first thing is, I don't think all of you will be appearing this time. So based upon considering this, I'm giving this gender point for you. You all will be preparing for UPSC, and then you all will be thinking that the prelims and the mains are there for which we have to prepare, and you will be undergoing test series and various things. But one of the mistakes that we do is we don't even think about interview. It is good that you all have joined right now, and then at least you will have some ideas based on our experience from somewhere. You should be preparing for interview also. You should improve your communication. You should improve your few skills
which will show your skill set during the interview. You can't improve, you can't prepare for interview within short span of time. It happened with a lot of aspirants, and it happened with me also. So as of now also I am talking with various aspirants who are going for this time interview, and I do see there is a lacuna in the preparation. Usually we don't see this interview process as an holistic process. We just neglect that interview process and we don't do anything during our preparation. That is the problem. A lot of aspirants who get good marks in main can't able to get into interview because they don't focus about this interview. Having said that, 275 marks are there, you can get 206 mark maximum within 30 minutes, and you don't have to do much for this, but over a period of time you should be preparing for that. So what should you do this time? First, you should be improving your communication skills. It can be in English, it can be in regional medium. I will come to regional medium little later, but if you are thinking that you will be giving it in English, you should be preparing for your interview also. You should be improving your communication skills. You should be constantly talking with your friends, and you should read books, and you should listen. What happens usually, we do prepare from books, we do write tests, and then we do go and think that we can deliver things when it comes to interview. It doesn't happen like that. It's all about LSRW: listening, speaking, reading, and writing. Usually till mains we do reading and writing alone. We don't focus on listening and speaking. That is the issue we could not be able to deliver when it comes to interview. So you should be holistically focusing on LSRW throughout this period. So how will you do that? So usually when it comes to prelims and main, often you will get bored or you will get stressed. At that time, you should focus for this. I have done during my last preparation only, last attempt only, I have focused on this. But earlier attempt, I couldn't do that. But even then, during my last attempt, I have been worrying like, should I have been doing all these things throughout my period, throughout the preparation? So your hobby, and then your communication skills, and your LS listening and speaking skills should also be improved during your preparation. This is the first thing. So now second part, you all are joined from across the India. So you might be from Jammu and Kashmir, you might be from Mysore, Tamil Nadu, or you may be from Nagaland or something. So it's good to see all of you here. Around 600 aspirants are right now. So you might be from various parts, from either urban part or from rural part. So my message for rural aspirant, especially for rural aspirant, that not to differentiate between rural and urban, but there is a one thing which you should know. When it comes to interview process, the whole preparation itself, if you are from rural, you are exposed to this kind of activities, you are exposed to this environment, you are exposed to whatever happening, current affairs, and all these things are lesser than those people who are in urban. Because those urban people, urbanized people, are within that circumstances, that surroundings, and they are getting all these things. But if you are from rural part, you will be missing out all these things, because your parents will not be working under this, your parent will not be focusing on all these things, you will not be listening news in your home, you will not be discussing these international and national issues in your home. So when it comes to interview, that plays a very important role. So if you are from rural background, I would suggest you to go extra mile to improve your communication skills. During my last attempt only, so just let me say one or two points about my interview preparation. Because I have completed and I have I have cleared this UPSC exam with regional medium, that is Tamil. We can see that quite few candidates only cleared with regional medium. For example, our Manoj Kumar sir, who was presenting some time before, have cleared with the Hindi medium. Like that, Sandeep Patel sir, who is in IPS, are cleared with Hindi medium. And likewise, I and one more IPS officer and one more IRS ma'am cleared with Tamil medium. It is very less in that UPSC that people are appearing with regional medium, especially for those persons who are coming from rural background, as well as for regional medium students. You can still appear with your own language. I have applied with Tamil, and my 7 of I guess right now this is right now okay, fine. Sorry for the interruption. So I have applied with Tamil for interview, because I was thinking like, what if I could not deliver my concepts in English?
Even now, I do think that I may not be able to express things very well in English, but over a period of time, I have been improving. So during my interview, I have given with Tamil, I have applied with Tamil, but I thought like, why can't we improve it in English? And then I have took some activities, and then I have improved little bit. I have joined British Council, and I have been listening, and then I have speaking, I have reading. I got few friends who with whom I can conversate with, I can discuss it. So I took that initiative, and then I was able to do something. So during the interview, I have given in English itself. They asked me if I was liking to give it in English or Tamil. Then I said, okay, sir, I will give it in English. So I would give it in English. It happened. So if you can, if you wish, you can give it in regional medium also. For that matter, it can be Hindi or anything else. You will be arranged. You will be given with a translator who will be translating between you and the board. So usually the board will consist of 5 members. When it comes to regional board, there will be one more person who will be translating between you and the board. But usually the questions will be understandable because you will be giving your prelims as well as in mains. The question paper will be in English, and then you will be reading throughout the period with English. So you will be able to understand the question. But if you feel you can't answer in English, you can go ahead with Hindi or your regional medium. That is, the facility is available. I just want to emphasize on that. And even then, I would suggest you to improve your English also, because you will be going across the country. And as of now, also I could not understand Hindi. I am facing a little bit of issue. Other than English, we don't have any lingua franca. So I would suggest you to improve your English also throughout the period of your preparation. It's not just you can read and you are giving mains in English, then your communication skills will be better. It's not like that actually. So you should be working on improving your communication skills also when it comes to English. So if you are from rural background, you have to go extra mile. You should understand that you are not at par with your own competitors because of your socioeconomic background. One. And if you are from regional medium, because you will be preparing with your regional medium, your Hindi or Malayalam, Kannadam, like that, and then your vocabulary and your deliverance will not be good as such as who is preparing the English. If you are from rural as well as if you are from regional medium, you should be improving your communication skills throughout the period of time. So this is what I wanted to say. Then when it comes to regional medium, let me say that last year from Tamil, 7 of us have given interview in Tamil, and 3 got cleared into survey. And one person from Kerala has given in Malayalam, and unfortunately he could not make up that. Likewise, we can see that one person have cleared with Kannada medium, and then two persons from Hindi medium, and two from Marathi medium, and one is in IPS and one is in another service. Like that, we can see that across the section there are people who have chosen regional medium and have done that. So if you're facing trouble with your English, and then still you can go ahead with the regional medium. That's what I wanted to say. So having said that, I just want to sum up one more thing. The final thing is about logistics. So I don't think you all will be appearing for this time interview, but few of you will be going to interview this time. So usually we do think that UPSC preparation is all about just about reading and writing, improving our skills. It's not like that. Especially when it comes to interview, I have found that this logistics issue will be a really big issue, because if you're rural background, especially if you're a first graduate, you will face a lot of these issues. Just because of this, you will miss the interview. And it happened to my friend. Fortunately enough, I got enough guidance from my seniors and my batchmates who helped me, and then was able to do that. And what does it mean by logistic issue? Okay, fine. I think I can go ahead. I'm sorry. Okay, so it has to be a continuous and holistic process. And if you're from rural background, you should be focusing on your communication and English skills. And if you're from regional medium, then you have to work extra mile. So fourth thing is about logistic factors. So what does it mean by logistic? Usually what happens now, if you're from rural background, it happened to me many times. The first flight, the first Delhi visit, the first suit, the first shoe, everything will be first, and then first it will be first interview, and then
you will be facing all these issues, which is not associated with directly with interview, but these things will, restrict your performance, limit your performance. It will hamper your performance. If you are facing all these logistic issues, and during that interview period, what will happen now? You will not be able to be calm, and you will be bogged down by these kind of activities, and this will hamper your calmness. So I would suggest you to think about during this period. So if you are a first timer and first graduate, if you are going to Delhi first time, and then if you are going to stay in an other place very first time, you should plan perfectly. You should plan perfectly in the sense from your dress, from your staying, from your travel, from your accommodations, and who will be accompanying with you, at what time you will reach, and what about the flight, etc., etc. All these things has to be written down, and you should address as soon as possible. This is the one of the very important thing. Or otherwise, at the end of the time, at the 11th hour, what you will be doing now, instead of focusing on your own preparation, you will be stressed upon about all these things. You will be worrying about how to board in a flight. It happened to me, first flight, to be frank. These things will affect you if you are a first timer. And if you're going to Delhi first time, you should make sure that if you're from my part of world, Tamil Nadu, and you will be facing a lot of issues with language and communication, that will also create some issues, some turbulence in you, and it will reduce your confidence as well as it will make you stressed upon. So you should think about logistic issues. The simple idea is, you should start preparing for your interview as soon as possible, and you should discuss with your seniors whatever it may be. I had to speak with many persons to come up with. Good evening, sir. Hi, Good evening, good Sunil. evening. I would like to welcome Hi. Sunil Dharmanta, our friend from IGES. Yeah. So, Oh, yeah, okay, Mrugnath, fine. you can continue. I guess. Sorry. Yeah. Just I had to complete with this. So you should focus about logistic issues. You face it and then you address it when it comes to your mind, and then you discuss with your seniors. We are here. You may be having n number of doubts. I was having doubts like what kind of shoe should I be wearing? So should I polish or not? So that kind of very small silly things will come, but it will affect you if you are from rural part of India. So I would suggest you to fix all these logistic issues when it comes to your mind, and we are here to help you. And that's all from my side. So I just discussed 4 things. I just want to sum up. One is, it has to be continuous process. If you are from rural background, you should be improving your communication skills. If you are from regional medium, you should be putting extra effort, and logistics things has to be taken care of. Thank you, Himanshu. Thank you so much, That's all Mrugnath. from my side. Thank you so much. All the best for all of you. If you are appearing this time, go and face this interview with full confidence. You don't have to worry about all these things. A lot of things have been already discussed. If you are appearing in future, you should be undergoing all these process throughout this period. Thank you. Once again. Thank you so much. Now I would Thank like you, to thank you, request Morgan. my friend Hiren to kindly, guide us how his interview went and give us some interview tips. हिरेन भाई हिंदी में बोल सकते हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाय. अभी हाँ, सुनाई दे रहा बोलो है हिरेन. हिमांशु? हाँ, सुनाई दे रहा है. तो काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदी में बात करो, तो मैं ट्राई करूंगा. हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा, बट इंटरव्यू के लिए 4-5 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि वो चेक करते हैं. एक होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स. तो कम्युनिकेशन स्किल्स में एक होता है कि आप कैसे बोलते हो, और दूसरा होता है कि आप कितना अच्छे से सुनते हो. कई बार क्या होता है कि बच्चों को अगर ज्यादा नॉलेज है तो वो बीच में ही आधा क्वेश्चन सुन के चालू कर देते बोलना, तो वो हो सके तो अवॉइड करिए. इंटरफियर नहीं करना है, और आपका लैंग्वेज हो सके उतना थोड़ा प्लेजेंट होना चाहिए. ब्लंट लैंग्वेज अवॉइड करें. ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए आपका लैंग्वेज कभी भी. तो पहला एक एरिया है जो कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए. दूसरा है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब जो आपने कहा है उसके ऊपर आपको खड़ा रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू. अगर आपको कुछ अलग सिचुएशन देते हैं वो लोग, तो ऐसा नहीं कि आपका स्टैंड अप बदल दो. ठीक है, जैसे आपने कहा कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अगर डिलेमा क्रिएट होता है आगे जाके, ऐसा कोई सिचुएशन उन्होंने दे दिया, तो आप सीधा बोल दो कि मैं वो वैल्यू के ऊपर स्टैंड करूंगा. अगर मुझे नौकरी छोड़ना पड़े तो भी मैं छोड़ दूंगा. फिर ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर के प्रेशर में आके अपनी वैल्यू छोड़ दूंगा. तो आपका इंटीग्रिटी सही होना चाहिए. तीसरा है कॉन्फिडेंस रखिए जो बोल रहे हैं उसके ऊपर. और चौथा है ह्यूमिलिटी होना चाहिए कि एक हम्बल इंसान चाहिए उनको, जो लोगों की तकलीफों को सुन सके. ये 4-5 बातें हैं.
और कोई भी चीज़ पे अगर आपको डाउट हो कि इसमें मैं क्या स्टैंड लूँ, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो I think there is some network issue, ना? Kiran, network issue. हिरेन कुछ नेटवर्क इशू है. Kiran, small interruptions in your connection, you can go ahead. I think उसका नेट नहीं चल रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये हिरेन का नेटवर्क में इशू है. इतने सुनील आप स्टार्ट कर सकते हो, इतने वो दोबारा ऐड करता है तो, या तो Yes, या Himanshu, मैं yes, उसको एक बार और ऐड yes. करता हूँ कोशिश. Okay. Good evening, guys, and thank you, Himanshu, for adding me. And actually, I am from Hindi medium, so काफी लोग की रिक्वेस्ट आ रही है कि हिंदी में बात किया जाए. So मैं हिंदी में ही बोलूँगा ज़्यादातर. और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है हिंदी में, तो I will try to speak in English also. ओके, हिरेन इज बैक, सो हाँ हिरेन Okay, कंटिन्यू यार. continue. हाँ ओके. सो 4-5 टिप्स है. एक तो ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए. शायद आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आप कम बोलते हो लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोग खा जाएंगे वहां पे जाओगे तो हो सके उतना नॉर्मल रहना. जैसे आप आपके एल्डर्स से बात कर रहे हैं, आपके सीनियर्स से बात करते हैं, बस वैसे आप बात करने जाना और नॉलेज गेन करने जा रहे हो, वो मेंटालिटी से जाना. आपको बहुत कुछ आता है, दिखाने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर करेगा. इसलिए डर मत रखना कोई भी, और जाओ तो कॉन्फिडेंस से जाओ, पर ह्यूमिलिटी के साथ. दूसरा एक ये है कि 1-2 क्वेश्चन ये थे कि कौन से साल में शुरुआत करना चाहिए हमें यूपीएससी का. तो लास्ट जब ग्रेजुएशन का 1 साल बाकी है तो आप शुरुआत कर सकते हो. और मेरा सजेशन रहेगा कि बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज ना दें, आप 2 या 3 दे, क्योंकि आप आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर पाओगे. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अपने में अलग होता है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में. तो डाइवर्स होने में कोई बुराई नहीं है, आप थोड़े अलग हो सकते हो, आपका ओपिनियन भी अलग हो सकता है, बट वही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडियाज है उसके अगेंस्ट में आपका ओपिनियन कभी नहीं होना चाहिए. और ज़्यादा काम आपको डेफ पे करना है. डेफ में अगर आप एम्प्लॉयड हो, वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो उसके ऊपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे. अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है और जो करंट चल रहा है नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उसके ऊपर आप फोकस करिए. और काफ़ी लोग जो है या तो ऑफेंसिव हो जाते हैं या तो डिफेंसिव हो जाते हैं, तो दोनों को अवॉइड करना है. सिर्फ आपको आपका ओपिनियन रखना है, ना आपको ज़्यादा डिफेंड करना है, ना आपको उसको ज़्यादा पुश करना है किसी के ऊपर. आपने आपका ओपिनियन रखा, दैट्स ऑल. ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. और जब इंटरव्यू देने जाओ तो काफ़ी लोग बातें कर रहे होंगे कि ये बोर्ड ऐसा है, ये बोर्ड वैसा है, तो वो सबसे दूर रहना. जो रूमर्स है, जब अंदर जाओगे तब पता चल जाएगा बोर्ड कैसा है आपके लिए. ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिसको 1 साल 200 से ज़्यादा है, दूसरी बार वो 150-160 पे आ गए, तो वो सब पे नहीं जाने का. अपना प्रिपरेशन, अपने जो किया है, बस दिमाग शांत रख के उस टाइम पे एंटर करने का. आधा घंटा या 40 मिनट आपका इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे दिमाग शांत रख के जितना आता है आपको एकदम शांति से बता देने का. नहीं आता तो सॉरी बोल के आगे चलने का. ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का. दैट्स ऑल. थैंक यू. थैंक यू हिरेन, थैंक यू. अब मैं Himanshu, Sunil, thank you. I would like to take your leave. Yes, ओके sir. Mugunathan. Thank Okay, you. sure. Thank you so much, Thank you. Mugunathan. Continue. All the best to all of you. Thank you for your Oh. time. Thank you so much. हाँ सुनील, आप शुरू कर सकते हैं. ओके, थैंक यू हिमांशु. अराउंड 400 लोग जुड़ चुके हैं, और कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो अभी इंटरव्यू देने जाएंगे इस साल, कुछ है जो फ्यूचर में इंटरव्यू देने वाले हैं. तो शायद मतलब ऑब्वियसली दोनों की स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत अलग होगी, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ. जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा अलग बात कर लेंगे, और जो फ्यूचर में इंटरव्यू देंगे उनके लिए थोड़ा अलग बात कर लेंगे. एक्चुअली इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 चीजों पे फोकस किया जाए. फर्स्ट है जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है, बात करने का तरीका है, सॉफ्ट स्किल्स हो गया. दूसरा होगा डेफ, और तीसरा होगा करंट अफेयर्स.
तो सबसे पहले उन्हें अपनी फिजिकल अपीयरेंस, कपड़े कैसे पहनना, जूता कैसा होना चाहिए, बैठना कैसे है, अंदर कैसे घुसना है, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना है। सेकंड है डेफ। डेफ में जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे उसका नाम हो, चाहे होम टाउन हो, होम डिस्ट्रिक्ट हो, होम स्टेट हो, इसके अलावा अगर उनका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और उसके बाद कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका हो गया। जैसे किसी का, जैसे हमारा है इंडियन रेलवे था मेरा, तो उसमें इंडियन रेलवे हो गया, स्पेसिफिक सर्विस हो गया IRS, राइट नाउ आई एम इन पुलिस, तो पुलिस हो गया, पुलिस का अलावा आपका कार्डर हो गया। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपके हर सेक्टर पे, हर जो फील्ड है टैप में, उस पर 15 से 20 क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए और उन पे एक एक दो लेयर तक, लेयर मीन्स कि एक क्रॉस क्वेश्चन का आप जवाब दे सको, इतने लेवल तक आप टैप को तैयार कर लीजिए। चाहे हॉबीज हो, हॉबीज पे बिल्कुल क्लियरली अच्छे से बैकग्राउंड के साथ विद करंट डेवलपमेंट्स, जो भी करंट डेवलपमेंट है उसके साथ अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद तीसरा सेक्टर है करंट अफेयर्स। करंट में जो जो बड़े इश्यूज चल रहे हैं उन पे अपना स्टैंड बनाना है। स्टैंड का मीनिंग ये है कि कोई इश्यू है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इश्यू क्यों आ रहा है। उसके बाद में उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों पॉइंट्स तैयार कर लीजिए और आपको स्टैंड ले लेना फाइनली। और स्टैंड होना चाहिए आपको ऑलवेज पॉजिटिव और जो फ्यूचरिस्टिक वे में होना चाहिए। और अगर जो आपका सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन दे रहे हो लास्ट में कोई प्रॉब्लम को लेकर, तो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म दे रहे हो तो केवल हाथों हाथ कंट्रोल करने के लिए, जैसे अगर नक्सलिज्म की बात करें तो उसके दो टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, वन इज शॉर्ट टर्म एंड वन इज लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आप एक उसको वहीं कंटेन किया जाए सिचुएशन को, प्रॉब्लम को। लॉन्ग टर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे मेजर्स किए जाएं, ऐसे तरीका किया जाए, उपाय किए जाएं, सो दैट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो हर प्रॉब्लम में आपको ऐसी अप्रोच बनानी है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज पे एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको मोब लिंचिंग पे पूछा जाए, अगर आपको लफ्ज विवाद पे पूछा जाए, अगर आपको CAA पे पूछा जाए, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका उसमें प्रोज और कॉन्स क्या है उस चीज के। आप उसके पक्ष में विपक्ष में अपने कॉपी में पक्ष और विपक्ष बना लीजिए। लास्ट में आपको राय क्या देनी है कि आपकी राय एक्चुअली अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है तो मोर और लेस गवर्नमेंट पॉलिसी के पक्ष में ही देना है, बिकॉज आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये है कि आपका काम है पॉलिसीज को लागू करना, पॉलिसीज को खारिज करना नहीं होता। हाँ, अगर आपको पॉलिसीज में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई भी आपको नई पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लागू करने के लिए, तो सबसे पहले आप पॉलिसी का अध्ययन करके उसको स्टडी करके उसमें लूप होल ढूंढेंगे कि इस पॉलिसी में ये लूप होल है, और उसके बाद में लूप होल ढूंढने के बाद में आपको सजेशंस भी देने हैं कि इन लूप होल को ऐसे दूर किया जा सकता है, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है। आपका काम इतना ही होता है। हाई लेवल पे जाने पर आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है, बट वो बात अलग है। लेकिन अगर पॉलिसी सामने है तो उसका केवल आपको ये देखना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, उसको खारिज नहीं करना कभी भी। और जो कमियां अगर पॉलिसी में बताई जाती हैं, उन कमियों को बस दूर करने के सजेशन देना है। तो हमेशा ध्यान रखना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ब्लंटली बिल्कुल खारिज नहीं करना है, एक सॉफ्ट अप्रोच लेके चलना है। तो ये है। और अगर पहले भी काफी 2-3 एस्पायरेंट, नेहा ने, मुरुगन ने, इन लोगों ने बात की है हर चीज पे, हर एस्पेक्ट पे। और अगर आप लोग को और क्वेश्चंस होते हैं तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा इंटरव्यू स्पेसिफिक। ये तो हो गया जो इस साल इंटरव्यू देने जा रहे हो। जो अंडर प्रिपरेशन, उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन में 3 फेज होते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आपको सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, अपनी पर्सनालिटी पे आज से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी कमजोर है, बोलना आपको नहीं आता अच्छे से, तो आज से लोगों से बात करना स्टार्ट कीजिए, उनके सामने अपना व्यूज रखें, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आज से ही आपकी पर्सनैलिटी के जो बाहरी पक्ष है, जो आंतरिक पक्ष है। पर्सनैलिटी के दोस्तों 2 पक्ष होते हैं, बाहरी की आप दिखते कैसे हो, बात कैसे करते हो। इंटरनल मीन्स आपका जो व्यूज है, आपका एक तरह से फिलॉसफी के अंदर की जो इंटरनल पर्सनैलिटी, दैट इज डिफरेंट। तो आपको दोनों पे आज से ही पहले ही दिन से काम स्टार्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको मेंस की तैयारी करनी है, लास्ट में प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए दोस्तों। आज से ही आपको जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करके, और फाइनल जब तक स्टेज ना आ जाए, मतलब उस टाइम पे बस आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। आपके जो सेक्टर्स हैं कि आपका ग्रेजुएशन क्या है, होम स्टेट क्या है, उनके बारे में अभी से न्यूज़पेपर के थ्रू, बाकी
स्टेट वेबसाइट हो गई, कोई बुक हो गई, उसके थ्रू पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम देखते हो, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम दिखती है, तब उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करो कि यार अगर मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता। धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे। दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि अगर आप मान लो कहीं ट्रैवल करने गए हो, कोई हिल स्टेशन पे, वहां पे कोई प्रॉब्लम देख ली, उस प्रॉब्लम को आप कैसे फोकस करोगे। आप मान लो कहीं बस से जा रहे हो, रास्ते में स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम देख ली, मान लो सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर आपको उस एरिया का डीएम बना दिया जाए तो आप कैसे उसको दूर करोगे। तो आप इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, और निश्चित रूप से इनके द्वारा, इन चीजों के द्वारा फाइनली इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर पाओगे। दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी केवल मेंस रिजल्ट के बाद में नहीं होती है। इंटरव्यू की तैयारी आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन के पहले दिन से ही करनी पड़ती है, तभी जाके आप इस इंटरव्यू के जो फेज है, जो आपको रैंक के साथ साथ आपको कार्डर और सब कुछ अच्छा दिला सकता है, इंटरव्यू पे मैटर करता है दोस्तों। तो मेरा यही कहना है। इसके अलावा कोई सवाल होगा तो हिमांशु मुझे बता देना कोई। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हिरेन भाई ने बताया और हमारे सुनील भाई ने भी बताया। अब मैं ऐड करना चाहूँगा अपने एक और मित्र को। हिमांशु, 2 पॉइंट पे मुझे हाँ हाँ बोल बात। हाँ, एक्चुअली तो- 2 क्वेश्चन आए थे कमेंट सेक्शन में। एक अर्चित करके कोई है, उनका है, उन्होंने कहा कि वो फ्रेशर हैं, अभी ग्रेजुएट हुए हैं, और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो जॉब ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो क्या उन्हें अटेम्प्ट देना चाहिए या फिर थोड़ा प्लान कर ले कुछ और फिर देना चाहिए? तो मेरा ये कहना रहेगा कि अभी आप सिर्फ प्रिपरेशन चालू रखिए, पर कोई और जॉब आप दे, मतलब कोई और एग्जाम आप दे सकते हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी और एग्जाम्स आप ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग का हो गया है तो इंश्योरेंस का हो गया, तो वैसा कोई आप एग्जाम दे के क्लियर करिए और फिर आप यूपीएससी का दीजिए फुल फ्लेज। अभी आप प्रिपरेशन चालू रखिए। और एक दूसरा किसी का था कि उन्होंने कहा कि डेफ में क्या हम सारे कॉलम भरना कंपलसरी है, जैसे प्राइज मेडल वगैरह है, तो वैसा कुछ कंपलसरी होता नहीं है। अगर है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। अगर आप बेवजह दोगे तो क्वेश्चन आएंगे वहां से। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है उस एरिया में तो आप लिखिए, वरना आप अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच हिरेन। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या हिमांशु, आई टेक लीव ऑफ बोथ ऑफ यू। तो अच्छा Bye. ओके हिरेन, थैंक यू सो Okay, मच bye, हिरेन। bro. इट वाज ग्रेट टॉकिंग विद Thank ऑल you ऑफ so यू। much. बाय, टेक केयर। सेम, थैंक यू सो मच हिरेन। ओके बाय। हाँ, तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर आप किस तरह से उसको इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना 70% फोकस जो है वो डेफ पे रखिएगा, और बाकी का 30% आप अपने करंट अफेयर्स जो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं या जो आजकल न्यूज़ आ रही हैं वर्ल्ड, इंटरनेशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस की, उन सब पे ध्यान रखिएगा। और डेफ के अंदर आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना है? डेफ के अंदर आपको ध्यान देना है सबसे पहले आपका जो नेम है। आप अपने डेफ में जो भी आप फिल कर रहे हैं पूरे डेफ को डीकंस्ट्रक्ट कर लें और उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिए। जैसे आपका नेम है तो उसका क्या मीनिंग है, या उस नेम के कोई और लोग हैं जो आप जानते हैं जो कभी रहे हैं, या क्या बोलते हैं वो आपका जो सरनेम है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सरनेम में कोई ऐसी, जैसे कोई ट्राइब आती है, कोई ऐसा आता है जिससे वो क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई एंशिएंट हिस्ट्री में कोई रहे हो, जैसे मेरे फ्रेंड सुनील धनवंता है, उनसे क्वेश्चन पूछा था धनवंतरी जी के बारे में, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में होता है आपकी डेट होता है, आपका मंथ होता है, आपका ईयर होता है। तो आपको उस ईयर के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो सब आप एक बार देख लीजिए। आपके मंथ में कौन कौन से डेज आते हैं, तो आपके मंथ से रिलेटेड क्या क्या हुआ है, या आपकी डेट जो है, डेट और मंथ है, उस दिन ऐसा क्या हुआ है, उस डेट का क्या रेलेवेंस है, ये आप डेट ऑफ बर्थ से याद कर सकते हैं। ये सब आप पहले से तैयार कर लीजिएगा। ऊपर से आपका होम स्टेट बहुत ज़रूरी है, आप याद रखिएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होने के चांसेस है आपके होम स्टेट से, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से, या आपके ग्रेजुएशन से। ये 3-4 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे टाइम अपना देना है। जैसे आपको अपने होम स्टेट को प्रिपेयर करना है तो पहले आप अपने स्टेट को प्रिपेयर करिए, फिर आप ये देखिए आप उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसकी एंशिएंट हिस्ट्री, उसकी डेमोग्राफी कैसी है कि इसमें किस तरह के लोग रहते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी जोग्राफी क्या है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है कि उसको एग्रीकल्चर बेस्ड है या मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है या सर्विस सेक्टर ज़्यादा है या किस तरह का है,
तो वो सब आप ध्यान रखिए। अपने होम स्टेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट में कितने विलेजेस हैं या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी तहसील हैं, ये सब आप एक बार देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपके स्टेट की पॉपुलेशन, आपके स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा, जो भी आपके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं आपके स्टेट के, वो आपको पता होने चाहिए। और हाँ, जैसे दो एक चीज़ ज़रूर अपनी प्रिपेयर कीजिएगा, आपके स्टेट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। आपके स्टेट की स्ट्रेंथ्स आपको पता होनी चाहिए, आपके स्टेट की वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए और उसके चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए और आप किस तरह से उनको सॉल्व करना चाहेंगे। दूसरा आता है कि अगर आपकी कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल इसमें कम्युनिटी का कॉलम होता है कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपसे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रखिएगा। फिर उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि आपका क्या ऑप्शनल है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका वही सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है तो वो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपका डिफरेंट है तो आपसे पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन इसमें किया लेकिन आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो अलग क्यों लिया, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। ऊपर से आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से अगर आपका टच में है, अभी अभी आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, तो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी रिलेटेड पूछेंगे, वरना आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर घुसेंगे तो वो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। और मान लीजिए आपका ऑप्शनल अगर PSIR या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके अंदर जो वहाँ पे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके ऑप्शनल के अंदर एक्सपर्ट हों। तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है और हो सकता है वो कोई ऐसे थिंकर का नाम बोल दे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आप थोड़ा थिंकर्स वगैरह देख लेना दोनों के, जो भी मतलब आपके ऑप्शनल हैं या किसी और ऑप्शनल हैं, जो भी मेन थिंकर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा। और वो ये भी पूछेंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपने इस चीज़ में ग्रेजुएशन किया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से हेल्प कर सकता है, या आपकी हॉबीज़ जो हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जैसे आपकी हॉबीज़ अगर डांस करना है या आप क्या खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल से रिलेटेड तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप डांस आपकी हॉबी है तो हम डांस को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हो, आप डांस से आपने ऐसा क्या चीज़ सीखी है जो एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंट हो सकती है, तो वो आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कर देंगे उस चीज़ को। और एक पर्सन रहेंगे वहाँ पे जो आपसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछेंगे, तो फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक अलग से फोकस देके ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे वो टेररिज्म के रूप में आए, चाहे वो इकोनॉमी के रूप में आए, चाहे वो लॉन्ग वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं उनके इसमें आए, या MOUs क्या है, इंडिया के रिलेशन किस कंट्री के साथ कैसे हैं उसके केस में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर ये कि उसके बाद आपका एड्रेस हो गया, ये सब भी आपके एड्रेस में अगर किसी लीडर का नाम आता है, जैसे मेरा एड्रेस है उसमें नाम आता है सर छोटू राम, तो सर छोटू राम जी कौन थे, उन्होंने इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपके कार्डर प्रेफरेंसेज और सर्विस प्रेफरेंसेज थोड़े से उनको जो जनरल हैं उससे थोड़ा अलग दिखते हैं तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका होम कार्डर है, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस होम कार्डर नहीं डाली तो पूछेंगे आपने अपना होम कार्डर क्यों नहीं डाला, या आपकी सर्विस प्रेफरेंस में आपने ऊपर नीचे किया तो आपको पूछेंगे आप किसी सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और जो आपके प्राइजेज, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये सब जो चीज़ें, इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने डेफ को डिकन्स्ट्रक्ट करिए और उस डिकन्स्ट्रक्ट करके उससे जो जो क्वेश्चन बन सकता है आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से, सबसे हेल्प लीजिए और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे वो क्वेश्चन आप बना लीजिए और इसके बाद अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए। तो 70% तैयारी आप अपने डेफ से करिए, 30% आप करंट अफेयर्स के टच में रहिए और कॉन्फिडेंस रखिए, बस कॉन्फिडेंट रह के जाइए और वहाँ काम रहिए, वहाँ पे पैनिक नहीं करना है, चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आता है चाहे नहीं आता है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है तब भी आप 200+ स्कोर कर दें। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए तो आपके इंटरव्यू में मार्क्स घट गए, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो सुनील भाई आप रिप्लाई कर सकते हैं। सुनील भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक सेकंड
हाँ हाँ ये हाँ। हेलो, हाँ हाँ सुनील भाई बोलिए। एक सेकंड। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। एक्चुअली एक दो बात और करना तो ये है कि जैसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड के पास कुछ क्वेश्चन एक्चुअली होता नहीं उनके पास ज्यादा पूछने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उनके डेस्क से ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं या कहीं काम कर चुके दूसरा प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी आप कर चुके हैं, तो आपका क्वेश्चन उनके पूछने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। और कई बोर्ड ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट आपसे करंट अफेयर के इश्यूज के सवाल पूछने लग जाते हैं। अगर मान लो इंटरव्यू आपके किसी दिन है और उसके आसपास एक दो कुछ ऐसी बड़ी घटना हो गई है कि जैसे कोई राइट हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी टाइम पे आपको करंट से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाय तान्या। हेलो। हाय तान्या। हाय हाय। तान्या, तान्या इज विद अस। हाँ तो हाँ सुनील यू कैन कैरी ऑन, आप बोलो। तो उस टाइम पे क्या है कि आपको तीन चीजों के एंगल से आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। पहला है कि आपके टैब के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उससे जवाब देना है। तो दूसरा है कि आपको अगर तो करंट से क्वेश्चन पूछ लेता है या आपका कोई जॉब प्रोफाइल है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कैसे प्रिपेयर है। इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। और साथ में अगर ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन अगर बात करूं, बहुत वैसे बहुत लोगों ने बता दिया है, फिर भी मैं बताता हूँ कि कोई सिचुएशनल क्वेश्चन आपको पूछता है तो सबसे पहले आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझिए। और कोई एक्सट्रीम स्टेप जो बोलते हैं ना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही जवाब देना है। और सिचुएशनल क्वेश्चन अगर आपका पूरा इंटरव्यू मान लो बहुत सारा फैक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिचुएशनल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो अच्छे से, तो वहां पे आपका इंटरव्यू बहुत अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सिचुएशनल क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके उसके जैसे हम लोग केस स्टडी सॉल्व करते हैं फिक्स में, उसकी तरह की उसके इश्यूज को जानिए, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से है, और एक सॉल्यूशन ना देने के बजाय दो तीन सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए और उसमें से बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो। और तीन चार जो की पॉइंट्स है वो ये है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को प्रेफर कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ध्यान रखिए, और जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको पहले एम्पावर करने की कोशिश कीजिए। और जो प्यूनिटिव अगर पनिशमेंट की जगह आपको रिफॉर्मेटिव मतलब एक्शंस पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा कि अगर किसी में सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो तो बोलता है कि कोई रेप रेप किया है किसी ने, क्या उसको गोली मार देनी चाहिए? आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं एनकाउंटर से संबंधित। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर हमें बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पहले हमारा जस्टिस सिस्टम है, इसको हमेशा जुडिशियल सिस्टम है, हमें उसका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा ऑलवेज, बिकॉज हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी की राइट ऑफ द लाइफ होता राइट टू लाइफ है, उसको बिना प्रोसीजर के आप नहीं छीन सकते, सबका राइट टू लाइफ है। तो ये चीजें आपको सिचुएशन का क्वेश्चन मतलब अगर आपके सामने आता है तो उसका जवाब देते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। हिमांशु मेरा हो गया, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सुनील। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तान्या टू शेयर हर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू एंड गिव सम टिप्स। तान्या तुम बताओ। हेलो। हाँ हाँ तान्या, हाँ तान्या। क्या एक्सपीरियंस इंटरव्यू का शेयर करना है? हाँ पहले जो एक्सपीरियंस इंटरव्यू का, फिर कुछ टिप्स जो तुम्हें लगता है कि इंटरव्यू में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। हाँ, तो मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है बैक टू बैक और तीनों इंटरव्यू में सेम मार्क्स ही आए हैं। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि यूपीएससी इज लुकिंग फॉर सेम क्वालिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड।
तो अगर आपका पर्सनैलिटी सेम है तो आपको सेम ही नंबर आएंगे। हिमांशु, मेरा एक कॉल आ रहा है, एक्चुअली मुझे लीव ठीक करना है पड़ेगा। ठीक है सुनील, थैंक यू सो मच सुनील। ओके हाँ गाइस, ऑल द बेस्ट ओके, एंड थैंक यू हिमांशु। थैंक यू सो मच सुनील फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू। हाँ, हाँ तान्या, तो थोड़ा मेरा जोर से बोलना तान्या। अरे रुको। सो मेरा सिर्फ एक ही टिप रहेगा कि ज्यादा इम्प्रेशन पे ध्यान ना दें इंटरव्यू में, कि हमें किसी को इम्प्रेस करना है तो अपने बारे में ज्यादा बोल दो कि मतलब हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। ज्यादा ध्यान होना चाहिए एक्सप्रेशन पे, जो आप रियल में हो। तो जैसे आपकी डैफ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लोगों की आदत होती है कि जितना नहीं उससे ज्यादा बोलना, कि वो इम्प्रेस हो जाएंगे, हमें नंबर दे देंगे। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्प्रेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो यही मेरा मतलब मेन इम्पोर्टेंट टिप है। बाकी तो बाकी तो तुम सबने डिस्कस किया ही है। हाँ बाकी हमने बता दिया कि डेफ पे ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, थोड़ा काम रहना है, हम्म पैनिक नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है। और सबसे ये इम्पोर्टेंट बात कि एक वहाँ पे, हाँ, हाँ बोलो, बोलिए मैं बोलिए। बोल रही थी एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि वो बैंक में जॉब करते हैं, मुझे प्रिपरेशन के लिए गाइड कीजिए, जो वर्किंग है उनको थोड़ा गाइड कीजिए। आई थिंक वर्किंग में ये रहता है कि आप एक साल का प्रिपरेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। बट क्योंकि आप बैंक में है तो आपको काफी कुछ चीजें आती होंगी, जैसे आप कॉमर्स ऑप्शनल ले सकते हैं तो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। फिर उसके अलावा आप ऑप्शनल का कम हो गया, प्लस आपने पीयू की तैयारी की होगी तो आपको थोड़ा एक्सपोजर होगा जीके से। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रिपेयर करने में। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ करे हैं और वो भी लोग बैंक पीओ में थे। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स मोर अबाउट योर स्ट्रैटेजी कि आप कौन सा ऑप्शनल लो जो आपको ऑलरेडी आता है। इस तरीके से आप अपना थोड़ा टाइम कट आउट कर सकते हो। और मैं बस ये बताना चाहूँगा कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे जब आप वहाँ यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और वहाँ पे आपसे लोग बोल रहे होंगे कि ये इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट है या यहाँ मार्क्स नहीं होते, तो उस सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। बस यही अपना फोकस रखना कि जिस इंटरव्यू बोर्ड जो भी आपको मिला है आपको वही सक्सेस दिलाएगा, और वहाँ पे आपको जाके अच्छा परफॉर्म करना है और कॉन्फिडेंस रखना है, नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। उसको एक कन्वर्सेशन की तरह लीजिएगा, एक क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह मत लीजिएगा। बस ऐसा लीजिएगा कि वहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप बस उनसे कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, और उस कन्वर्सेशन के बेसिस पे वो जज करेंगे कि आप किस तरह के इंसान हो और किस तरह से आपसे हमें इंडिया को एज अ नेशन फ़ायदा होगा। तो बस आप उस चीज़ पे ध्यान रखिए और आप पैनिक मत कीजिए। बस सबसे इम्पोर्टेंट है पैनिक मत कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए बस। तो आई थिंक दिस इज इट। ये हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है, हमारा 1 आवर का सेशन था तो इट्स ऑलरेडी 8। सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अच्छे से ध्यान से पढ़िए इंटरव्यू के लिए, और साथ के साथ अपने प्रीलिम्स की तैयारी भी रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।